Hey guys, welcome back to the Light Mode channel. And today in this session, we are going to discuss the series 5 of the financial term which we are discussing earlier. This session is related to the previous asked question to the RBI grade B. So today this session is very special because the term and the topic is related to the inflation. ओके सो आज हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लेशन से रिलेटेड क्वेश्चन और इन्फ्लेशन को समझेंगे कि व्हाट इज इन्फ्लेशन एंड इन्फ्लेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर आरबीआई फॉर सेबी एंड इवन फॉर द यूपीएससी एग्जाम. इन्फ्लेशन यू शुड नो, you need to understand everything related to the inflation. Okay, so in this topic we are going to discuss the inflation and the questions which were previously asked in the RBI grade B exams. So again I am telling you, please like our channel and subscribe for daily updates, and for complete course visit us at lightmode.in. Okay, so let's begin the session. This is the question, this is the first question. What is stagflation? What is stagflation means? Stagflation क्या था, ये क्वेश्चन पूछा गया था आरबीआई ग्रेड बी फेज 2 के एग्जाम में 2019 for 1 marks. So this was the 1 mark question in 2019 RBI grade B phase 2. And second question is the opposite situation of inflation is known as. तो inflation का opposite situation क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था RBI grade B phase 1 2017 for 1 marks, and the options were deflation, stagflation and hyperinflation. So you can see that all the terms, all the questions are related to the inflation. तो सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि inflation क्या होता है, what is inflation? I will tell you in brief that inflation in simple words is a situation where general price level increases but over a particular period of time. It may be a longer duration, but this rise in the price level is over a particular period of time. So this is basically the inflation. जब किसी भी पर्टिकुलर पीरियड के लिए महंगाई बढ़ जाती है, जब चीजों के दाम बढ़ जाते हैं, तो दैट पीरियड इज इन्फ्लेशन. ओके, तो दिस इज द इन्फ्लेशन. तो अल्टीमेट इफेक्ट इन्फ्लेशन का क्या होता है? अल्टीमेट इफेक्ट ये होता है कि जब वैल्यू ऑफ मनी रिड्यूस हो जाती है तो एक कंज्यूमर का जो परचेसिंग पावर है वो भी रिड्यूस हो जाता है. ओके, जहां हम पहले 100 रुपए में बहुत सारी चीजें खरीद सकते थे, अब वहां हम 100 रुपए में पहले जितनी चीजें नहीं खरीद सकते. ओके, so this is the ultimate effect of the inflation. When the value of money is reduced, that means that it reduces the purchasing power of money. Okay, so you can see here that एग्जाम्पल आप ले लो इस चीज का कि आप देख रहे हो कि प्याज का जो प्राइस है वो पहले 30 रुपी पर केजी था, लेकिन वो इन्फ्लेशन के वजह से वो बढ़ के 30 to 60 रुपी केजी हो गया. Okay, so this is the inflation rising and this is the price of onion is rising. So this is the way inflation rise. But इट इज नॉट दैट कि अगर एक चीज का किसी एक पर्टिकुलर गुड का प्राइस राइज कर गया है तो वो इन्फ्लेशन है. ओके, जब तक उसके प्राइस के इफेक्ट बाकी सारे गुड्स पे ना दिखे, दैट डजंट मीन द इन्फ्लेशन. अगर एक सिंगल गुड्स का प्राइस इंक्रीज करा तो हम उसे इन्फ्लेशन नहीं कहेंगे. जब बहुत सारे गुड्स का प्राइस इंक्रीज करता है तो उसे इन्फ्लेशन कहा जाता है. तो यू कैन सी हियर कि कैसे अनियन का जो प्राइस है वो 30 रुपी पर केजी से 60 रुपी पर केजी हो गया, और कैसे इस गोलगप्पे का प्राइस जो है वो 10 रुपी पर प्लेट से 40 रुपी पर प्लेट हो गया. और बहुत मुश्किल हो जाता है गोलगप्पा लवर वालों के लिए कि 60 रुपए की प्याज हो जाए और गोलगप्पे वाले भैया बोलते हैं हम आज गोलगप्पे में प्याज नहीं डालेंगे, आप मूली खा लो. तो दिस इज वेरी टफ. So when you are getting this plate at 40 rupees and you are getting that onion in that, you will eat that. Okay, so you can see that how Anushka is eating when the गोलगप्पा प्लेट इज फॉर 40 रुपीज और वो प्याज इतने महंगे कि उसे छोड़ भी नहीं सकते. ओके, so this is what the inflation is. Okay, so we will move and some more points related to the inflation. So you understand that what is the inflation? This is the general rise in price level of the daily commodities. This is the daily commodities के जब price level में बढ़ोतरी हो जाती तो you say that is the inflation. जब आपका purchasing power कम हो जाता है, that is the inflation.
ओके ये जो आपके गुड्स हो सकते हैं वो फूड्स, क्लोथ्स, ट्रांसपोर्ट, इवन इन द अदर कमोडिटीज, इंडस्ट्रियल गुड्स, वो कुछ भी होगा, ठीक है। तो इन्फ्लेशन बेसिकली फॉल्स द परचेसिंग पावर, और जब इन्फ्लेशन हाई होता है तो कॉस्ट लिविंग भी हाई हो जाती है, ठीक है। जब ही महंगाई बढ़ती है तो हमारे रहने सहने का जो कॉस्ट लिविंग है, जो दैट इज द एक्सपेंस ऑफ लिविंग, वो भी बढ़ जाता है। एंड इट ऑल्सो इफेक्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी अच्छा नहीं होता है। तो हम अब बात करेंगे types of inflation की, okay, तो there are majorly two types of inflation. First is demand pull inflation and second is cost push inflation. तो demand pull inflation जो है वो क्या होता है? This is basically a type of inflation that is caused due to an increase in the aggregate demand in the economy. Okay, this happened when the aggregate demand in the economy increases. जब डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम होता है तो that affects that push to the demand pull inflation. तो उसकी वजह से demand pull inflation होता है। Like suppose when you are earning well, जब आप एक कंज्यूमर हो और जब आप अच्छा कमा रहे हो तो you will feel confident, and when you feel confident you spend more. ठीक है, अगर हम 50,000 की जगह 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं तो हम और ज्यादा खर्च करेंगे, और हम जब ज्यादा खर्च करते हैं तो वी टुक क्रेडिट कार्ड, वी टुक मोर लोन। तो जब हम उस डेब्ट को लेते हैं तो दिस थिंग्स lead to the steady increase in the demand, which means that higher prices. So this is the demand pull inflation. Demand की वजह से inflation जब बढ़ती है, that is the demand pull inflation. Okay, and second is कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो दिस इज द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है वो फैक्टर इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी हो जाती है। देयर विल बी एन इंक्रीज इन द फैक्टर इनपुट कॉस्ट, दैट मींस द प्राइस विल राइज ऑफ द वेजेस एंड द रॉ मटेरियल्स। जब वेजेस और रॉ मटेरियल्स के प्राइस में बढ़ोतरी हो जाती है तो दैट इज द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। दिस प्राइस इफेक्ट the production cost. This price affect the production cost, which is done by the cost push inflation. And increase in the price of inputs like crude oil price fluctuations and the interest rate, which is increased by the RBI. So this is the cost push inflation. These are the example of cost push inflation. जब हमारे फैक्टर इनपुट कॉस्ट इंक्रीज हो जाते हैं, जब वेजेस बढ़ जाती हैं, जब रॉ मटेरियल प्राइस बढ़ जाते हैं, जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है, तो दैट इज द पार्ट ऑफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ओके, तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। डिफ्लेशन क्या होता है? डिफ्लेशन बहुत रेयर होता है, बट डिफ्लेशन इज जस्ट अपोजिट टू द इन्फ्लेशन। जब डिक्रीज होती है प्राइस, जब फॉल हो जाता है प्राइसेस का, दैट इज द पार्ट ऑफ डिफ्लेशन। तो दिस इज द डिफ्लेशन। रिसेशन क्या होता है? रिसेशन होता है जब डिमांड फॉल करता है, जब इन्वेस्टमेंट फॉल करती है, व्हेन देयर इज अ फॉल इन डिमांड, फॉल इन इन्वेस्टमेंट एंड द फॉल इन बिजनेस ऑप्टिमिज्म, दैट इज रिसेशन। ओके, दैट इज रिसेशन। तो यहाँ पे हम ये चीजें समझ गए हैं कि इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन के इफेक्ट्स क्या होते हैं और उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो अब हम वापस से अपने क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे और क्वेश्चंस को यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज स्टैगफ्लेशन? ओके, तो हम जब इन्फ्लेशन और रिसेशन दोनों को समझ चुके हैं तो हम स्टैगफ्लेशन भी समझ जाएंगे वेरी इजीली, बिकॉज stagflation is the coexistence of both inflation and recession. Okay, so stagflation is basically the combination of inflation and recession. When inflation is rising but the output is falling, that is the stagflation, means the high inflation and unemployment. Okay, the high inflation and unemployment, it is a combination for the stagflation. This is the cause for the stagflation. Okay, you can see that कि stagflation क्या होता है। तो आप ये क्वेश्चन समझ के अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम यही क्लियर करेंगे कि द अपोजिट सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन इज नोन एज, तो आपको मैंने अभी बताया कि अपोजिट सिचुएशन जो होता है वो होता है डिफ्लेशन। तो जो इन्फ्लेशन का अपोजिट सिचुएशन डिफ्लेशन है, स्टैगफ्लेशन भी आप समझ चुके हैं। तो हाइपर इन्फ्लेशन को क्यों छोड़ेंगे हम? हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है? तो हाइपर इन्फ्लेशन इज अ बेसिकली अ सिचुएशन
जहां पे वैल्यू ऑफ मनी बहुत रैपिडली नीचे आता है। ओके, जहां वैल्यू ऑफ मनी बहुत रैपिडली नीचे आता है और पीपल जो होता है ना वो करेंसी में फेथ जो लूज कर देते हैं। ठीक है, दे स्टार्ट लूजिंग फेथ इन द करेंसी एंड दे वांट टू बार्टर सिस्टम, दे वांट टू गो इन द बार्टर सिस्टम। बट ऐसा ये जनरली अभी नहीं होता है। दिस सिचुएशन आया था जर्मनी में आफ्टर द वर्ल्ड वॉर वन। दिस वाज द सिचुएशन इन द जर्मनी आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। ओके, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यह सिचुएशन जर्मनी में आया था। तो कुछ यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। द क्वेश्चंस आर क्लियर, द टॉपिक्स आर क्लियर, द टर्म्स आर क्लियर एंड इसके कुछ पॉइंट्स यहाँ पे रह गए हैं, वो हम देख लेते हैं। You got the deflation, stagflation, inflation, hyperinflation, and what are the indices which India used to measure the inflation? So the first one is wholesale price index. Wholesale price index is basically to measure the price of average price of wholesale products. Wholesale products के जो एवरेज प्राइस होते हैं उनको मेजर करने के लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो अगस्त में ये परसेंटेज था 4.07। ये WPI के अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन रेट था 4.07 जो कि बढ़कर 6.92 हो गया फॉर सितंबर 2020। तो दिस इज द रेट। एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है? दिस इज जनरली टू मेजर द डेली यूज कमोडिटी। हम जहाँ पे डेली यूज रिटेल बेस पे इसको किया जाता है मेजर, वो होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो these are the two indices which is used by India to measure the inflation, that is wholesale price index and the consumer price index. Simply you can understand that wholesale price index for the wholesale market and consumer price index for the retail products. Okay, it is for the daily use, it is for the retail product और ये monthly basis पे different commodities के लिए use किया जाता है, like electricity, like clothes, like cars and all the things like foods and all that. तो ये सारी चीजों के लिए वहां पे यूज किया जाता है। ओके, तो इन्फ्लेशन, उसके टाइप्स एंड इंडाइसेस यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज द टर्म विच वी हैव क्लियर्ड, विच वी हैव डिस्कस्ड। एंड इन्फ्लेशन को डील करने के लिए आरबीआई लेकर आता है मॉनेटरी पॉलिसी एंड रेपो रेट इज द बेस्ट वे बाय द आरबीआई टू डील विद द इन्फ्लेशन। ओके, सो हियर वी एंड दिस सेशन एंड नेक्स्ट सीरीज वी विल कम विद सम डिफरेंट टॉपिक, some different terms. Okay, so till then, thanks for watching, and if you like this video, please share with your friends, and for more detailed contents you can visit us at lightmode.in. Thanks for watching.